اقرا پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اس اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا، علق کہتے ہیں خون کے لوتھڑے کو، جمے ہوئے خون کو، خون کا جو لوتھڑا ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے علق، اور اسی سے علقہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جس نے انسان کو پیدا کیا خون کے لوتھڑے سے، جمے ہوئے خون سے، اور آگے پھر اللہ نے کہا اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور پڑھیے کہ آپ کا رب بہت ہی زیادہ مکرم ہے، قابل عزت ہے، قابل کرم ہے، اور وہ کرم کرنے والی ذات ہے۔ اب یہاں پر جو واو لگا ہوا ہے، اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب بہت زیادہ کرم والا ہے، تو یہ اور واو کے معنی عربی میں اور کے ہوتے ہیں۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ واو استعمال ہوتا ہے اور کے لیے، لیکن کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے واو قسم کے لیے، جیسے اس سے پہلے تھا والتین والزیتون، تو واو جب قسم کے لیے ہوتا ہے تو بعد والے لفظ کے آخر میں زیر آ جاتا ہے، جیسے والتینی ہے اور والزیتونی ہے، وطور سینینا ہے، تو یہ سب میں زیر آ رہا ہے۔ تو یہاں پر جو یہ واو ہے اور کے معنی میں ہم کر رہے ہیں، لیکن اصل میں یہ واو حال کے معنی میں ہے، اس حال میں کہ آپ کا رب کرم والا ہے۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے اس حال میں کہ آپ کا رب کرم والا ہے، آپ کا رب عزت والا ہے، آپ کا رب بزرگی والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہا الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا، جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ چیز سکھلائی جو انسان جانتا نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے مرحلے پر یہ 5 آیتیں حضرت جبرائیل کو دیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آ کر کے ان 5 آیات کو سنایا، پیش کیا اور پڑھایا۔ یہ ان 5 آیات کے نزول کے وقت میں آپ کی پریشانی، آپ کی شدت، آپ کی بے چینی اتنی بڑھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اترے اور اپنے گھر آ گئے، اور کپ کپی آپ کے اوپر طاری تھی، بالکل سردی میں جیسے کوئی آدمی ٹھٹھرتا ہے، تو آپ ٹھٹھرتے ہوئے گھر تشریف لائے اور مجھے چادر اڑھاؤ۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چادر اڑھا دی۔ چادر اڑھانے کے بعد سارا واقعہ پیش کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ خدیجہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اب بچوں گا نہیں، میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ یہ جو حالت ہوئی اور یہ جو کیفیت ہوئی، وہی کے نزول کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اما خدیجہ، چونکہ آپ کے اخلاق سے واقف تھی، آپ کے کردار سے واقف تھی، انہوں نے تسلی آمیز جملے کہے ہیں۔ بخاری شریف میں وہ الفاظ ہیں، اما خدیجہ نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، اور اس کے علاوہ اور بھی الفاظ ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے، حضرت خدیجہ کہتی ہے کہ ہرگز نہیں، خدا کی قسم آپ کو آپ کا رب ہلاک نہیں کرے گا، آپ کو آپ کا رب رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں رسوا نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ آپ ایسے انسان ہیں جو کسی انسان کے پاس میں بوجھ ہوتا ہے اور وہ بوجھ اٹھا نہیں پاتا ہے تو آپ اس کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ بیواؤں کی خبر گیری کرتے ہیں، آپ بدحال لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ جس کے ایسے اخلاق ہو اس کو اللہ تبارک و تعالی ضائع کر دے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ یہ کیفیت ہے، فوراً وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر کے گئی۔ اور ورقہ بن نوفل کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے مکے کے اندر
जो तौरेत के बहुत बड़े आलिम हैं। ये पहले मुशरिक थे, बाद में ईसाई मजहब को कबूल किया और तौरेत के बहुत बड़े आलिम थे। इतने बड़े आलिम थे कि इन्होंने तौरेत का तर्जमा अरबी में किया था और तौरेत में जो चीजें लिखी हुई थी अरबी में लोगों को बतलाते थे। इतने बड़े वालिम थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के हजरत खदीजा गई है वर्का बिन नौफिल के पास और उनसे सारा माजरा बयान किया। वर्का बिन नौफिल ने कहा, खुदा की कसम ये वही फरिश्ता है जो फरिश्ता हजरत मूसा के पास आता था और हजरत ईसा के पास आता था। आप अल्लाह के रसूल हैं। क्योंकि उन्होंने तौरात में ये सारी बातें पढ़ी थी। पढ़ने के बाद उन्होंने इस बात को देखा और देखा कि वो सारी बातें इस शख्स पर बैठ रही है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सारी बातें बिल्कुल मैच कर रही है। तो उन्होंने कहा कि आप अल्लाह के नबी हैं और एक जमाना आएगा कि आपको आपकी कौम मक्का से निकाल देगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ताज्जुब हुआ, क्योंकि सारे लोग मक्का में आपको चाहते थे, आपको पसंद करते थे, आपको अमानतदार कहते थे, अमीन कहते थे, रास्तबाज कहते थे, सादिक कहते थे। अल्लाह के नबी ने कहा, अवा मुखरिजियहुम, क्या वो लोग मुझे निकाल देंगे जिससे इतनी मोहब्बत करते हैं? तो वर्का बिन नौफिल ने कहा कि हाँ, हर नबी के साथ जब उसने अपनी दावत पेश की है तो उसके साथ उसकी कौम ने ऐसा ही किया है। आपको भी आपकी कौम निकाल देगी और अगर मैं उस वक्त जिंदा रहा तो मैं आपकी मदद करूंगा। पहला आदमी है हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद जिसने नबी की नबूवत की तस्दीक की है। सबसे पहले हजरत खदीजा ने जब कैफियत देखी तो कहा कि आप इतने अच्छे इंसान हैं, आप पर जो बात आई है मैं उस पर ईमान लाती हूं, अल्लाह आपको जाय नहीं करेगा। फिर वर्का बिन नौफिल के पास ले गई और वर्का बिन नौफिल ने ये सारी बातें कही तो इससे भी उन्होंने भी तस्दीक कर दी। बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मामलात हुए उससे पहले उनका इंतकाल हो गया। इन 5 आयात के बाद वही का सिलसिला रुक गया और एक लंबे अरसे तक वही रुकी रही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब और बेचैनी लाहिक हुई, चूंकि वही के नाजिल होने के वक्त में जो तकलीफ हुई थी और जो परेशानी हुई थी वो तो वक्ती चीज थी, लेकिन इसकी लज्जत जो आपको मिली है और ये जो बातें अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बतलाई है और ये पैगामात जो आपको दिए, अब अल्लाह के नबी को इस बात की चाहत थी कि अल्लाह की तरफ से और कलाम आए और पैगामात आए और बातें आए, लेकिन वो सिलसिला रुका हुआ है। बहुत दिनों के बाद सूरह मुदस्सिर नाजिल हुई, फिर उसके बाद सूरह मुज़म्मिल नाजिल हुई, उसके बाद फिर ये सिलसिला चला और उसके बहुत दिनों के बाद की आयात नाजिल हुई है। तो कुरान करीम नुज़ूल के एतबार से बितरतीब कुरान में मौजूद नहीं है। बाद में नाजिल होने वाली सूरतें पहले लिखी गई हैं, पहले नाजिल होने वाली सूरतें बाद में है। और ऐसा भी है कि इसकी 5 आयतें नाजिल हुई, फिर सूरह मुदस्सिर नाजिल हुई। तो होना तो ये चाहिए था कि सूरह मुदस्सिर की जो आयत थी इकरा सूरह अलग के साथ उसे जोड़ देना चाहिए था, लेकिन दोनों में रब्त नहीं था, इसीलिए उसको एक अलग सूरत और जो बाद में आयत नाजिल हो रही थी वो इसके मज़ामीन से मेच खा रहे थे, तो इसके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे लिखवा दिया। अब इसमें ये जो पहली 5 आयत हैं, ये आयत हम सब के लिए ऐसी है कि हमें सोचना और गौर करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी पर जो सबसे पहली वही नाजिल की है वो वही क्या कह रही है? वो वही कह रही है इक़रा, पढ़िए, इक़रा पढ़। और पढ़ने का मतलब क्या होता है? तालीम हासिल करना। अब इस तालीम के सिलसिले में हम और आप देख लें कि हमारी नस्लों का और हमारी कौम का और मुसलमानों की अक्सरियत का तालीम के सिलसिले में रुझान कैसा है, तालीम के सिलसिले में हमारी फिक्र कैसी है।
कौन सी तालीम हम पसंद करते हैं और किस तालीम में हम जा रहे हैं, इसे भी देख ले। हम ये कहते हैं कि मदरसे की तालीम में गरीब होते हैं और बेबस लोग होते हैं, लाचार होते हैं, तो आप स्कूल की तालीम में भी कहां आगे बढ़ रहे हैं? अगर इस तालीम से आपको शगफ नहीं है तो दूसरी जो तालीम जिसे आप मयार समझते हैं, इज्जत और बरतरी का जरिया समझते हैं, उसमें भी आप कहां आगे हैं? अब इन 5 आयात के बाद जो आगे वाली आयात है उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इस नेमत के बाद कहा कि कल्ला इन्नल इंसान लयत्गा, हरगिज नहीं। इन नेमतों का हक तो ये था कि इंसान शुक्र अदा करता। अल्लाह ने इल्म दिया है, अल्लाह ने कलम के जरिए से लिखना सिखाया है, अल्लाह ने वो बातें सिखलाई जो हम जानते नहीं थे। तो इस नेमत पर तो इंसान को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन शुक्र करने के बजाय इंसान सरकश हो गया। अल्लाह कहता है इन्नल इंसान लयत्गा, ये इंसान सरकशी कर रहा है, सरकशी कर रहा है, शुक्र नहीं कर रहा है, नाशुक्री कर रहा है, इस नेमत का हक अदा नहीं कर रहा है। अर्रआहु इस्तग़ना, वो अपने आप को मुस्तग़नी समझता है, अपने आप को बेनियाज समझता है। वो समझता है कि हमें अल्लाह की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास में दौलत है, हमारे पास में इल्म है, हमारे पास में सलाहियत है, हमें कुरान की कोई जरूरत नहीं, नबी की कोई जरूरत नहीं, अल्लाह की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमें इन चीजों की फुर्सत नहीं है। हमें दुनिया के कारोबार और दुनिया के धंधे से फुर्सत नहीं मिलती है। तो अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है इन्ना इला रब्बिका रुजा, फुर्सत तो ऐसी मिलेगी कि फुर्सत के अलावा कुछ होगा ही नहीं। अल्लाह कह रहा है कि मरोगे, इन्ना इला रब्बिका रुजा, लौटना सबको तुम्हारे रब की तरफ है। और जब मर जाएंगे, कब्र में चल जाएंगे, तो कब्र में तो फुर्सत ही फुर्सत है। इतनी फुर्सत है कि उससे ज्यादा कहीं फुर्सत की नहीं है। अभी मसरूफियत है, इस मसरूफियत के औकात में अल्लाह को राजी कर लेंगे तो कब्र में आसानियां होंगी, कब्र में सहूलतें होंगी। लेकिन यहां पर हम अल्लाह को राजी करने की कोशिश नहीं करेंगे, अपने आप को बेपरवाह समझेंगे, अपने आप को गनी समझेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि फिर हम बतला देंगे जब तुम हमारे पास लौट करके आओगे। अरअयतल्लज़ी यन्हा, आपने देखा उस शख्स को जो रोकता है। यहां से जो बातें शुरू हुई है, इसका जो सबसे पहला मुस्तहिक है, ये आयत जो सबसे ज्यादा फिट होती है वो है अबू जहल। यानी ये हिस्सा अबू जहल के लिए नाजिल हुआ है और अबू जहल जैसे लोगों के लिए नाजिल हुआ है। अब अबू जहल ही वो शख्स है जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है अरअयतल्लज़ी यन्हा, आपने उस शख्स को देख लिया जो मना करता है। किसको मना करता है? अब्दन इदा सल्ला, उस बंदे को जो नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ने वाले को नमाज से रोकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के सामने आकर के नमाज पढ़ते, अबू जहल आ जाता और अबू जहल कहता कि मोहम्मद तुम यहां पर आकर के नमाज मत पढ़ा करो। हदीस में यहां तक आता है कि अगर तुमने यहां नमाज पढ़ने की कोशिश की तो हम तुम्हें पटक देंगे और तुम्हारे सर पर अपना पैर रखेंगे और पैरों से तुम्हें कुचल देंगे। ये इस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धमकी देता। अल्लाह तबारक व तआला उसी के बारे में कह रहा कि आपने देख लिया उस शख्स को जो अल्लाह के बंदे को रोकता है इस हाल में कि वो नमाज पढ़ता है। इसे रोकना चाहिए जुए से, इसे रोकना चाहिए रिश्वत से, इसे रोकना चाहिए झूठ बोलने से, इसे रोकना चाहिए गलत काम करने से, लेकिन उसे रोक रहा है जो अल्लाह के लिए नमाज पढ़ रहा है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अराइत इन काना अलल हुदा, अगरचे जिसे रोका जा रहा है वो हिदायत पर हो, हिदायत पर है वो, उसे ये रोकता है। और अमर बित्तक़वा, और फिर उसका काम यह है कि वो तकवा का हुक्म देता है। वो खुद हिदायत पर है, तकवा का हुक्म देता है, ऐसे आदमी को ये रोकता है। इससे बड़ा बदबख्त कौन होगा? इसकी बदबख्ती की इंतहा ये है
اور इतना बदबख्त इंसान शायद इस रुए जमीन में कोई दूसरा आया नहीं होगा। इसकी बदबख्ती इंतहा की थी। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बारे में ये सारी बातें कही और उसके बाद अल्लाह ने कहा अरअयता इन कद्दब व तवल्ला, और आपने ये देख लिया कि खुद इसका हाल ये है कि ये झुटलाता है अल्लाह तबारक व तआला की आयत को और रूबरदानी करता है। खुद तो इसका हाल ये है कि ये नबी की तस्दीक नहीं कर रहा है, नबी की बात मान नहीं रहा है, नबी के तरीके पर चल नहीं रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो अहकाम बतलाए हैं उन अहकामात पर अमल नहीं कर रहा है, बल्कि उसको झुटला रहा है और उससे मुंह मोड़ रहा है, उससे किनारा कशी इख्तियार कर रहा है, और जो नमाज पढ़ता है उसे नमाज पढ़ने नहीं देता है। अलम यालम भी अन्नल्लाह यरा, क्या उसे ये बात मालूम नहीं है कि अल्लाह उसे देख रहा है। अल्लाह तबारक व तआला अबू जहल के बारे में कहता है, क्या अबू जहल को ये बात मालूम नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे देख रहा है। अबू जहल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना तो करता ही था, कभी कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ करके कहता था कि मोहम्मद, अगर तुम बाज नहीं आए तो हम अपनी जमात को लेकर के आएंगे और पूरी जमात मिल करके तुम्हें रुसवा करेंगे, जलील करेंगे, पिटाई करेंगे, जो करना है हम करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आगे वाली आयत में उस बात को कहा, कल्ला लइल्लम यंतही लनस्फअन बिन्नासिया नासियतिन कादिबतिन खातिया फलियदउ नादिया सनदउ ज़बानिया। यहाँ ये पूरे इस वाक़ये का नक्शा अल्लाह तबारक व तआला ने खींचा। अल्लाह कहता है हरगिज नहीं, लइल्लम यंतही, अगर ये बाज नहीं आया, अबू जहल अपनी हरकत से बाज नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, लनस्फअन बिन्नासिया, हम इसे पेशानी के बालों को पकड़ लेंगे और पेशानी के बाल को पकड़ करके खींचेंगे और उठाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, वो पेशानी नासियतिन कादिबतिन खातियतिन, कि वो पेशानी कैसी है, झूठी है, पेशानी झूठी है और खता करने वाली है। बसा औकात किसी इंसान के एक जुज को बोल करके पूरा इंसान मुराद लिया जाता है। जैसे कोई सामने आता है तो हम उसके चेहरे को देखते और कहते हैं कि आपका चेहरा झूठा है, तो झूठा चेहरा नहीं होता है, बल्कि पूरा जिस्म, पूरा वजूद उसका झूठा होता है, लेकिन हम चेहरे की तरफ कहते हैं। तो यही मिसाल अल्लाह तबारक व तआला ने कि उसकी पेशानी झूठी है और खता करने वाली है। अल्लाह तबारक व तआला ने पेशानी से पेशानी बोल करके पूरी जात मुराद ली है कि वो पूरी जात झूठी है और खता करने वाली है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अगर वो बाज नहीं आया तो हम उसे पेशानी के बल घिसेटेंगे, और ऐसी सूरत में फल यदउ नादिया, उसे चाहिए कि अपनी जमात को बुला ले। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा कि अगर बाज नहीं आता है तो हम उसे पकड़ेंगे, तो अगर इस पकड़ से बचना है तो अपनी पार्टी को बुला करके ले आए, कितनी ताकत है पार्टी में देख लेंगे। जब ये आयत नाजिल हुई तो अबू जहल को डर हो गया, फिर उसने कभी अपनी पार्टी और अपनी जमात की धमकी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं दी। वो डर गया कि कहीं सचमुच में अल्लाह तबारक व तआला हमारे ऊपर कोई ऐसी पार्टी खड़ी ना कर दे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने आगे कहा है सनदउ ज़बानिया, वो अपनी पार्टी बुला ले और देख ले, हम भी जहन्नम के फरिश्तों को बुला लें। अल्लाह कह रहा है अपने नबी की तरफ से कि ए नबी, ये आपको धमकी देता है, आप इसकी धमकी से मत डरिए। अगर ये धमकी दे रहा है ये बाज नहीं आएगा, हम इसकी पेशानी के बाल को पकड़ करके घसीटेंगे, ऐसी सूरत में अगर इसके पास में दम है और ताकत है तो अपनी पार्टी को बुला ले, हम भी जहन्नम के फरिश्तों को बुला करके पेश कर देंगे। इस सुनने के बाद अबू जहल की हालत खराब हो गई। इन दुनिया में जो बदतरीन लोग आए हैं उन बदतरीन लोगों में से अबू जहल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल के बारे में इरशाद फरमाया कि इस उम्मत का फिरौन अबू जहल है। फिरौन
کے بارے میں ہم نے سنا کہ موسیٰ علیہ کے زمانے کا جو بادشاہ ظالم تھا، اللہ کے نبی نے کہا کہ فرعون ہذہ الامتی ابو جہل، اس امت کا فرعون ابو جہل ہے، اور دشمنی اتنی تھی نبی سے، حالانکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سچی مانتا تھا، قرآن کی آیات کی تصدیق بھی کرتا تھا، دل اس کا اس بات پر مطمئن تھا کہ محمد سچے ہیں، محمد کا کلام سچا ہے، لیکن خاندانی جو برتری ہوتی ہے اس کے خاندان میں اور بنو ہاشم کے خاندان میں برابر مقابلہ ہوتا رہا ہے۔ مقابلہ ہوتا رہا کس بات پر؟ حاجیوں کے کھانا کھلانے کے بارے میں، مال دولت خرچ کرنے کے بارے میں، ہر اعتبار سے دونوں برابر برابر ہیں، بنو ہاشم بھی برابر ہے اور ابو جہل کا خاندان بھی برابر ہے۔ لوگوں نے پوچھا تھا کہ محمد کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ اس نے کہا کہ محمد سچے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ بنی ہاشم سے ہے، اور بنی ہاشم سے ہمارا ہر بات میں مقابلہ ہوا ہے۔ اب ایسی صورت میں بنی ہاشم نے ایسے انسان کو پیش کر دیا، ہم اپنے خاندان میں محمد کہاں سے لائیں؟ اس انا اور اس آئی ایم سم تھنگ نے اس کو ہلاک کر دیا کہ ہم محمد جیسا کہاں سے لائیں گے، ہم محمد جیسا لا نہیں سکتے ہیں، لہذا ہمارا کام یہ ہوگا کہ مرتے دم تک محمد کی مخالفت کریں گے، اور مخالفت کرتا رہا، اور اتنی مخالفت کی ہے اس نے کہ بدر کے میدان میں ایسی ذلت کی موت مرا ہے، لیکن مرنے کے بعد بھی تکبر کا معاملہ دیکھیے اور تکبر کی انتہا دیکھیے۔ دو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ بدر کے دن میں کھڑا تھا، دو انصار کے بچے میرے پاس آ گئے، ایک میرے دائیں اور ایک بائیں کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اے چچا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، لیکن تمہیں کیا غرض؟ تو اس بچے نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، اگر میں اسے دیکھ لوں گا تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ دوسرے نے مجھ سے یہی بات کہی کہ اے چچا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں، لیکن تم کیا کرو گے؟ اس نے بھی کہا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، اگر میں نے اسے دیکھ لیا میں اپنی تلوار سے اسے قتل کر دوں گا یا میں مر جاؤں گا۔ کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف کہ میں اسی دوران تھا، درمیان میں تھا کہ ابو جہل نظر آ گیا۔ میں نے دونوں بچوں سے کہا یہی ہے ابو جہل۔ یہ دونوں بچے باز کی طرح گئے ہیں اور جھپٹا مار کر کے دونوں بچوں نے کام تمام کر دیا، لیکن ابھی مرا نہیں ہے، بالکل مرنے کے قریب ہے۔ عبد الرحمن بن عوف گئے ہیں پاس میں، ابو جہل کا تکبر دیکھیے، اس نے کہا کہ اب تو تم میری گردن کاٹ دو گے، لیکن میں مر رہا ہوں، ایک کام کرنا، ایک بات کا خیال رکھنا کہ میری گردن یہاں سے مت کاٹنا، یہاں سے کاٹنا، تاکہ پتا چلے کہ سردار کی گردن ہے، اور اسے اونچی جگہ میں رکھنا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عرب کا سردار مرا ہے۔ اس عالم میں بھی تکبر ایسے درجے کا جو اختیار کر سکتا ہے وہ کتنا برا انسان ہوگا کہ مر رہا ہے، عذاب نظر آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے دن جو مشرکین گڑھے میں ڈالے گئے تھے تو سب کے سامنے جا کر کے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ کیا تم نے اللہ کے وعدے کو سچ پا لیا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ حضرت ابو بکر گئے اور اللہ کے نبی سے کہا بس یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ سب میری باتیں سن رہے ہیں لیکن جواب دینے کی طاقت ان میں نہیں ہے، یہ ساری باتیں میری سن رہے ہیں۔ تو ایسے پرلے درجے کا انسان تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے بولیے کہ اپنی جماعت بلا لے، ہم جہنم کے داروں فرشتوں کو بھیجتے ہیں، کلا لا تطعہ واسجد واقترب، لہٰذا آپ اس کی بات کبھی مت مانیے گا۔ یہ ایسا انسان نہیں ہے کہ آپ اس کی بات مان لیں، آپ اس کی بات مت مانیے گا اور آپ سجدہ کرتے رہیے اور اپنے رب کا قربت حاصل کیجیے، اپنے رب کی قربت حاصل کیجیے، اپنے رب سے تقرب حاصل کیجیے، اپنے رب سے قریب ہونے والے اعمال کرتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مقام کو اور بلند کرے گا اور اس کی جو پستی ہے پستی میں اور اضافہ کرے گا۔
اللہ तबारक व तआला हम तमाम लोगों को कुरान पढ़ने, कुरान सीखने, कुरान समझने और कुरान करीम पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। ये जो सूरत थी, इसमें जो आखिर वाली आयत है वस्जुद वक्तरिब, इससे सजदा वाजिब हो जाता है हर शख्स पर जो इरादे के साथ सुना है या जो बगैर इरादे के साथ सुना है। लिहाजा यहाँ से उठने के बाद हर आदमी पर सजदा करना जरूरी होगा, वो सजदा कर लेंगे।